Hello friends, we'll have a look into quick revision about body fluids and circulation today. Dear friends, we'll have a quick recapture and revision about body fluids and circulation today. There are different types of fluids that are circulated in organisms. The fluid may be from external environment or produced inside the body. The fluids are of two types. We'll have a look into that. Blood, lymph and water. The water is an body fluid that is circulated inside the body. We can call it as a body fluid in case of lower invertebrates. Like example is your sponges and sedentates. Whereas blood and lymph is seen in all vertebrates as the circulatory fluid. Then a circulatory systems, then we'll have a look into the different components of a circulatory system. These are like pumping organ, then circulating vessels, then circulating fluid. As we have discussed that in vertebrates we have the circulating fluid as blood and lymph, the circulating vessels. This circulating fluid is either blood and lymph in vertebrates. Circulating vessels, these may be blood vessels, like your blood, the circulating vessels, either blood vessels or lymphatic vessels. Then blood vessels, these are of different types like arteries, veins, capillaries. Here lymphatic vessels, it includes your capillaries, left and right lymphatic vessels. Then pumping organ, it may be a heart in case of us, and lymph is circulated by body muscles. Then we'll have a look into different types of circulatory system. Now we'll have a look into different types of circulatory system. The circulatory system are of two types seen in organisms or animals, like open circulatory system and closed circulatory system.
open circulatory system have only one large vessel and body sinuses. Seen in case of your arthropods and mollusks. Whereas closed circulatory system have, as we have mentioned, all the vessels like arteries, veins, capillaries. This closed circulatory system seen in case of all vertebrates, and these are also seen in case of invertebrates like annelids and cephalopod mollusk. Like your squids, cuttlefish, devilfish. Now we'll have a look into and one more organism that is called devilfish. We can mention here that is also the invertebrate having your closed circulatory system. Now we'll see the particular organ that helps in pumping. That is heart. The heart, that is a chambered heart in vertebrates, and muscular heart and chambered heart, which may be 2 chambered, 3 chambered or 4 chambered. We'll have a look into that. The heart may be 2 chambered, seen in fishes, and it circulates toxic or deoxygenated blood. Through atrium and वेंट्रिकल. इसमें 1 एट्रियम होते, 1 वेंट्रिकल होते, उससे ये सर्कुलेट करता है टॉक्सिक फ्लूइड. सो इट इज commonly called as toxic heart. Then 3 chambered heart, seen in your amphibians and reptiles. Both of them supply deoxygenated blood. And the chambers are 2 atrium and 1 ventricle इनमें होते हैं. देन नेक्स्ट होता है 4 चैम्बर्ड हार्ट. 4 चैम्बर्ड हार्ट these are having 2 atrium and 2 ventricles in them. Then they are seen in case of your birds and mammals. और इसको हम होम्योथर्म्स लिख सकते हैं. होम्योथर्म्स में ये पाए जाते हैं
तो विच टाइप ऑफ हार्ट सीन इन होम्योथर्म्स, होम्योथर्म्स में आपका 4 चैम्बर हार्ट होते। नाउ विल सी अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इन ह्यूमन बीइंग। सो ह्यूमन हार्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इट कंटेन्स 4 chambers as we have mentioned here, then externally covered by double layered pericardium, ये एक्सटर्नली होते हैं, एक्सटर्नल कवरिंग। देन हार्ट, ये डिराइव्ड फ्रॉम मेजोडर्म और ओरिजिन हार्ट का होता है मेजोडर्मल। देन 2 atrium are separated by interatrial septum, atrium and ventricles are separated by AV valves or atrioventricular valves, which may be tricuspid between your atrium right and ventricle right or right ventricle. Then bicuspid between atrium left and ventricle left. Then in between ventricles इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है। देन इंटरनली क्या क्या होते हैं एट्रियम में एंड वेंट्रिकल में, वो देखेंगे। राइट एट्रियम हाफ, राइट एट्रियम में ओपनिंग ऑफ सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कवा होता है। देन above it have above in the right atrium it have SA node and below towards left AV node। SA node को हम पेस मेकर बोलते हैं। देन राइट एट्रियम then left atrium we are having opening of 4 pulmonary veins। then right ventricle
from right ventricle emerges pulmonary artery and it is covered by three semilunar valves called as, इनको कॉमनली बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व्स। हाँ, देन लेफ्ट वेंट्रिकल इससे एमर्ज होते हैं, एमर्जेस aorta guided by three semilunar valves called as aortic valves. Then we will have a closed loop on double circulatory system. In case of human, it is complete because deoxygenated blood passes through right side of heart while oxygenated blood through left side of heart। हाँ, लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट, इसका मतलब आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है ये राइट एट्रियम होके राइट वेंट्रिकल होके लंग्स को जाता है। सिमिलरली लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है वो लेफ्ट एट्रियम होके लेफ्ट वेंट्रिकल होके आपका बॉडी को सर्कुलेट होता है। सो इसको डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नाउ वी विल हैव ए लुक इनटू द बॉडी फ्लूइड्स। नाउ वी विल हैव ए brief glimpse on the internal structure of heart and how the double circulation occurs there. We will have a revealing on it. This is the structure of heart. The blood comes from these two vena cava. ये होते आपका ये सुपीरियर वेना कावा, ये होते इंफीरियर वेना कावा। ये वेना कावा जो लिखा है ये इंफीरियर होते, ये सुपीरियर होते एंड ये ब्लड यहाँ पे ड्रेन करते हैं। ये होते राइट एट्रियम, राइट एट्रियम में ये ड्रेन करता है। देन यहाँ से ये जाता है राइट वेंट्रिकल को, राइट वेंट्रिकल से ये देखिए आपका ये राइट वेंट्रिकल में यहाँ पे ये होते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो कि ट्राइकस्पिड सेमिलुनर वाल्व, 3 सेमिलुनर वाल्व से कवर हुआ है। देन ये आपका पल्मोनरी ट्रंक होते हैं, पल्मोनरी ट्रंक से ये लेफ्ट एंड राइट लंग्स को जाता है प्यूरिफिकेशन के लिए। सिमिलरली आपका ये लंग्स से जब आता है ब्लड, ये देखिए आपका ये पल्मोनरी वेन्स होते हैं, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, तो 4 वेन्स यहाँ पे ड्रेन होते हैं एंड इस पर्टिकुलर पार्ट होते हैं लेफ्ट एट्रियम। ये लेफ्ट एट्रियम से ये आते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल को, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये आपका यहाँ पे ऐसे एक आपका एओर्टिक ट्रंक है, रेड कलर है, इसको बोलते हैं एओर्टिक ट्रंक एंड ये फिर आपका बॉडी को सर्कुलेशन के लिए जाते हैं। तो ब्लड ये 2 बार इस हार्ट में पास करता है, एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है और एक बार ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पास करता है। देखिए ये पाथवे कैसे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे जाता है, देन यहाँ से जाता है आपका लंग्स को प्यूरिफिकेशन के लिए। आई विल शो द पाथवे लाइक दिस। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसे आता है, देन यहाँ से ये लंग को प्यूरिफिकेशन के लिए जाते हैं।
देन ऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से आते हैं, देन थ्रू दिस आओटा, ये देखिए आओटा यहाँ पे है, ये आओटा होके बॉडी को सर्कुलेशन के लिए जाते हैं। तो ट्वाइस आपका ब्लड फ्लो होते हार्ट के अंदर में, राइट। एक बार ये पास होते आपका राइट साइड में जो कि डीऑक्सीनेटेड ब्लड होते, एंड एक बार पास होते लेफ्ट साइड में जो कि ऑक्सीनेटेड ब्लड होते। तो ट्वाइस ब्लड पास होते आपका हार्ट से, इसलिए इसको बोलते डबल सर्कुलेशन। देन कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, और हार्ट का जो कंडक्टिंग मीन्स कैसे ये आपका हार्ट कैसे ये ऑटो एक्साइटेबल फाइबर से कंट्रैक्ट होते, रिलैक्सेशन होते, उसके बारे में हम देखेंगे, राइट। यहाँ पे देखिए ये कंडक्टिंग सिस्टम होते हैं, यहाँ पे दिखाया गया है साइनो एट्रियल नोड, जो कि आपका साइनो एट्रियल नोड कहाँ पे होते हैं, राइट एट्रियम के अपर साइड में। ऐसे एवी नोड और एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड ये लोअर साइड ऑफ राइट एट्रियम में होते हैं। यहाँ से ये देखिए आपका इस पर्टिकुलर चीज को बोलते हैं एवी बंडल, दिस पार्ट एवी बंडल होते। देन ये लेफ्ट एवी बंडल, देन ये राइट एवी बंडल, देन यहाँ पे थोड़ा डायग्रामेटिकली दिखाया नहीं गया, ऐसे ये वाला होते, ऐसे आपका जो एक्साइटेशन ऐसे पास करते हैं इसमें, राइट। तो ये वाला होते हैं पुर्किंजी फाइबर्स, ये पुर्किंजी फाइबर्स ये वाला होते हैं, ये पर्किंजी फाइबर्स ये भी ऑटो एक्साइटेबल होते। तो ये सभी ऑटो कॉन्ट्रैक्टिबल एंड रिलैक्सेशन प्रॉपर्टी रखते हैं। तो इसीलिए इसके वजह से हार्ट ऑटोमेटिकली कंट्रैक्ट एंड रिलैक्सेशन हो सकता है, लेकिन फर्दर इसका कंट्रोल ब्रेन से भी होते हैं। जैसे हमारा इंटरनली जो भी ऑर्गन बॉडी में रहते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए एएनएस होते हैं, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होते हैं, जो कि आपका दो तरह का नर्व स्प्रेड करते हैं, एक होते हैं पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्व्स, राइट। इससे ये सिंपैथेटिक नर्व से आपका हार्ट रेट बढ़ सकता है, मीन्स ये आपका एक्साइटेशन जो यूजुअली 72 चाहिए सैन का, वो 72 तक लाने के लिए यूजुअली योर एड्रेनालिन जो कि सिंपैथेटिक नर्व से आते हैं ये फ्लो होते हैं। देन पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स ये रात में ये ब्लड प्रेशर डाउन करते हैं, ये ब्लड प्रेशर डाउन करते हैं। तो व्हेन ब्लड प्रेशर कम्स बिलो 72 it have the effect of parasympathetic secretion that is acetylcholine। तो पैरासिम्पैथेटिक सिक्रेशन से हार्ट रेट कम होते और आपका हार्ट का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन कम होते, एंड सिंपैथेटिक नर्व से ये आपका हार्ट का दिन भर और अंटिल नाइट ये हाई अमाउंट में रहते हैं, एंड ये सिंपैथेटिक नर्व्स उसका सिक्रेशन होता है एड्रेनालिन, उसके वजह से कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन अप टू 72 बीट्स पर मिनट ये होते हैं, राइट। देन वी विल हैव ए लुक इनटू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल हार्ट में डिफरेंट स्टेप होते हैं, जैसे आपका कंट्रैक्शन ऑफ, और कंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं इसमें सिस्टोल बोलते हैं, कंट्रैक्शन सिस्टोल, रिलैक्सेशन ये होते हैं डायस्टोल। देन ये कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन कितना टाइम में होते हैं, 0.8 सेकेंड इट टेक्स फॉर कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देन इसमें दो तरह का कंट्रैक्शन होते हैं, एक होते हैं एट्रियल कंट्रैक्शन और एक होते हैं वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन। देन एट्रियल रिलैक्सेशन एंड वेंट्रिकुलर रिलैक्सेशन। देन इसको कलेक्टिवली भी बोलते हैं जॉइंट डायस्टोल। देन स्टेप इसमें होते हैं, जैसे
आपका सिस्टोल ऑफ एट्रियम यहाँ से शुरू होते हैं। देन ये किसके वजह से होते हैं? और डीपोलराइजेशन इसको बोलते हैं एट्रियम का। और इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं एक डिवाइस जो ईसीजी में, इसको बोलते हैं पी वेव। ईसीजी में पी वेव होते हैं। देन इसमें क्या होते हैं? रशिंग ऑफ ब्लड टू वेंट्रिकल। देन इसमें 1/4 इज फिल्ड, 1/4 ऑफ वेंट्रिकल फिल होते हैं। देन वी आर हैविंग नेक्स्ट पार्ट, दैट इज क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स। जैसे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व का क्लोजर, इट प्रोड्यूस लव साउंड। देन क्लोजर ऑफ एवी वाल्व होने के बाद आपका यूजुअली प्रीवियसली सेमिनर वाल्व वो क्लोज रहते हैं, इसके वजह से फिलिंग होते हैं। देन एवी वाल्व जब क्लोज होते हैं तो वेंट्रिकल में एक प्रेशर होते हैं, इस प्रेशर को बोलते हैं आपका नेक्स्ट पार्ट होते हैं। इसमें वेंट्रिकुलर प्रेशर, इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता, नो चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम, नो चेंज इन द हार्ट वेंट्रिकल, बट देयर एग्जिस्ट ए प्रेशर, सो इसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। इसमें नो चेंज इन वेंट्रिकल, नो चेंज इन ब्लड वॉल्यूम। तो इस पर्टिकुलर प्रेशर में बाहर को कुछ नहीं दिखता है, लेकिन इंटरनली प्रेशर होते हैं जिसको बोलते हैं आइसोवॉल्यूमेट्रिक कंट्रैक्शन। देन इसका बाद थर्ड स्टेप होते हैं आपका इजेक्शन ऑफ, रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड। रैपिड इजेक्शन ऑफ ब्लड क्यों होते हैं? ये वेंट्रिकुलर सिस्टोल के वजह से होते हैं। वेंट्रिकुलर सिस्टोल। देन इसमें आपका खुल जाता है कौन सा चीज? सेमिलुनर वाल्व्स ओपन। एवी वाल्व्स स्टिल क्लोज रहते हैं। देन इस पर्टिकुलर चीज हम ईसीजी में कैसे दिखते हैं? ईसीजी में इस पर्टिकुलर चीज को क्यूआरएस, हाँ, ईसीजी ए ईसीजी डिपिक्ट्स और दिखाते हैं इसमें आपका क्यूआरएस wave. Then after the blood flows through your AV similar valves, right, through your ventricle, then next step occurs is slow ejection of blood, and इसको बोलते हैं आपका आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन। इसमें कोई प्रेशर नहीं होता, जो ब्लड होता है वो आपका टोटली एम्प्टी हो जाते हैं फ्रॉम वेंट्रिकल टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी और लंग्स को चला जाता है, राइट। देन
इस पर्टिकुलर चीज को ईसीजी में ईसीजी डायस्टोल और वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं टी वेव और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल करके देखते हैं। नाउ वी विल हैव ए डिपिक्शन और picturesque view of your ECG and its different waves. The picturesque view of ECG shows P wave here. Then this P wave is also very important in context of NEET. Several times it is asked in the NEET. So we will see what denotes P wave. P wave ये depolarization of atrium होते, then इसमें इनिशिएशन ऑफ सैन के वजह से डीपोलराइजेशन होते हैं, इनिशिएशन ऑफ सैन। देन इस पर्टिकुलर चीज को हम देखते हैं, ये होने से हार्ट का साइकिल, कार्डियक साइकिल बिगिन होते हैं। ये नहीं होने से कार्डियक साइकिल ये आपका हो सकता है, लेकिन बहुत धीमी से हार्ट चलता है। दैट इज ड्यू टू एवी नोड। ये एवी नोड से बहुत धीमी से चलते हैं, उसको पेस मेकर रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। लीव ऑफ दैट, नाउ विल सी अबाउट द नेक्स्ट वेव, क्यूआरएस वेव। ये क्यूआरएस वेव यहाँ पे डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल होते हैं। देन इसमें इनिशिएशन ऑफ एवी नोड होते हैं। देन टी वेव में आपका पहले नॉर्मल स्टेट को आ जाता है वेंट्रिकल। सो इसलिए इस पर्टिकुलर चीज को ये रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, तो ये रीपोलराइजेशन जब होते हैं वेंट्रिकल का, उस वक्त आपका ब्लड फिलिंग शुरू होते हैं आपका वेंट्रिकल में। सो स्लो फिलिंग ऑफ ब्लड भी होते हैं यहाँ पे, स्लो फिलिंग ऑफ ब्लड ये इनिशिएट होते हैं। इस पर्टिकुलर चीज में लिख सकते हैं आपका रैपिड फिलिंग ऑफ ब्लड, इन वेंट्रिकल। तो इस स्लो फिलिंग में 3/4 इज फील्ड, आपका वेंट्रिकल का 3/4 फील्ड होते हैं, एंड यहाँ पे 1/4 इज फील्ड। तो ये चीज ये डायग्राम से सीखने वाला चीज होते हैं। देन विल सी अबाउट द अदर स्टेप्स इन कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल को डिपिक्ट करने के लिए ईसीजी होते हैं, पर्टिकुलर डिवाइस टू सी द कार्डियक साइकिल इज योर ईसीजी। तो हेल्प्स इन डिटेक्टिंग कार्डियक साइकिल फंक्शनिंग। देन नेक्स्ट स्टेप क्या क्या होते हैं आपका कार्डियक साइकिल का, वो सभी देख लेंगे। तो वी हैव सीन इन आवर प्रीवियस लेसन और प्रीवियस रिविलेशन, वी हैव शोन दैट स्लो इजेक्शन ऑफ ब्लड होते हैं। देन यहाँ पे हम देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। स्लो इजेक्शन का ब्लड के बाद रिलैक्सेशन और वेंट्रिकल, और इसको बोलते हैं डायस्टोल।
diastole of ventricle, closure of सेमिलुनर वाल्व्स। ये सेमिलुनर वाल्व ये आपका पल्मनरी आर्टरी में होते, 3 होते एंड एओर्टा में 3 होते। सो ये सेमिलुनर वाल्व ये क्लोज होने से एक साउंड आते हैं, साउंड प्रोड्यूस्ड इज डप। तो ये लप डप कंटिन्यूसली चलता रहता है, राइट। देन ये आपका एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्लोजर ऑफ सेमिलुनर वाल्व ये प्रोड्यूस करता है आपका डप साउंड, जो कि स्लो पिच साउंड। देन प्रीवियस में हम देखे थे इन फर्स्ट आपका हार्ट साउंड, ये सेकेंड हार्ट साउंड कहते हैं, सेकेंड हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड हम देखे थे, ये देखिए यहाँ पे हम लिखे थे फर्स्ट हार्ट साउंड। फर्स्ट हार्ट साउंड ये क्लोजर ऑफ एवी वाल्व से होते हैं एंड ये लव साउंड होते हैं, फर्स्ट हार्ट साउंड होते हैं। तो एग्जाम पॉइंट दिस क्लोजर ऑफ एवी वाल्व्स प्रोड्यूस लव साउंड, जो कि फर्स्ट हार्ट साउंड होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। द हार्ट साउंड्स आर इम्पोर्टेंट इन द कॉन्टेस्ट ऑफ एग्जाम। देन ऐसे ईसीजी का जो वेव्स है उसका डिटेल हम जो दिए थे यहाँ पे वो भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ए डिटेल। देन वी विल हैव ए लुक इनटू द अदर पार्ट्स ऑफ कार्डियक साइकिल। तो ये आपका नेक्स्ट पार्ट होता है opening of AV valves and closure of large valves of large veins। तो ये लास्ट वाला स्टेप होता है जिसमें ये फिर रिपीट होता है साइकिल। तो दीज आर द डिफरेंट स्टेप्स इन कार्डियक साइकिल। नाउ वी विल हैव ए लुक इनटू द अदर कंटेक्स्ट इन आवर नेक्स्ट क्लास। डियर फ्रेंड्स, वी विल कंटिन्यू with our previous class on body fluids and circulation, which is a part of revision. Now we will see about the part 2 that contains different types of body fluids like blood and lymph and blood antigens, then antibodies of blood. Then we will see about the other factors that pertains to diseases or disorders of circulatory system. The blood, it is made up of two different fractions, that is a fluid fraction called plasma and the cellular fraction called corpuscles. And the fluid fraction is always present with the body and it is up to 55%, while corpuscles, they are regularly formed at a specific time limit and they are of 45%. The corpuscles are of 3 different types. They are either erythrocytes or RBC, then leukocytes or WBC, then thrombocytes or platelets. So this RBC stands for red blood corpuscle and white blood corpuscles, then these are platelets. Then here plasma, it contains different fractions, like most abundant fraction in plasma is water, up to 91%
it is present inside the particular plasma. Then we are having proteins. Proteins, they are of three different types. These proteins are albumins that helps in providing osmoregulation. Then we are having next factor, that is globulin. So globulins are the defensive corpuscle present in plasma. So usually this is important in the context of exam, and this globulin is also important and it helps in the defense in the plasma. Then third one is fibrinogen. Indirectly we can tell it is the inactive component in plasma. So inactive component indirectly it asks, because when it is getting activated, we know before clotting they are converted to fibrin. So inactive component ये फिब्रिनोजेन होते हैं, ये भी आपके लिए important होते हैं. Then apart from that, other things present in plasma are other factors or other substances in plasma. They are your nutrients. Nutrients are in the form of monomers of monomeric biomolecules like glucose, then your amino acids, fatty acids and glycerol. So these are the monomeric form nutrients. These are not clearly visible, so we can shift it to other slides also. We will shift it to other slide. So other substances in plasma, the other substances in plasma are your nutrients, like glucose, amino acids, fatty acids and glycerols. Then here we are having your minerals in ionic form, like calcium, you are having magnesium, sodium. All these are in the ionic form existing in the plasma. Then apart from that, we are having vitamins, then your enzymes. These are all present in the plasma. अभी देखते हैं हमारा कॉर्पोसेल्स में कौन सा कंपोनेंट्स है. कॉर्पोसेल्स में क्या सब कंपोनेंट है उसके बारे में देखेंगे. कॉर्पोसेल्स में हम ऑलरेडी देख चुके हैं. उसमें आरबीसी है, आरबीसी, देन डब्ल्यूबीसी, देन प्लेटलेट्स.
देन अभी देखेंगे आरबीसी के बारे में डिटेली। आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसी और the RBC, these are called corpuscles. Why? Because they have a fixed lifespan. So RBC having lifespan of 120 days in adults. Then it contains, RBC contains hemoglobin, and hemoglobin contains 4 iron molecules. So यहाँ पे ध्यान दे, आयरन आर Fe+2 होते हैं, नॉट Fe+3, बिकॉज हमारा बॉडी में आयरन फेरस फॉर्म में होते हैं, फेरिक फॉर्म में नहीं होते, तो 4 आयरन मॉलिक्यूल्स होते हैं। देन इट इम्पैक्ट्स, हेमोग्लोबिन रेडिश कलर इम्पैक्ट करते हैं। टू आरबीसी। देन ये आपका नंबर कितना होते हैं? दे आर नंबर, मेल में 5 लाख होते हैं, सॉरी 50 lakhs मेल में, एंड फीमेल में 45 lakhs, और ये 5 मिलियन एंड ये 4.5 मिलियन होते हैं। देन ये आरबीसी, इस पर्टिकुलर आरबीसी, ये आपका बॉडी में हाउ इट हेल्प्स इन गैसियस ट्रांसपोर्ट। तो ये आपका गैस ट्रांसपोर्ट करते हैं, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। देन डब्ल्यूबीसी के बारे में देखेंगे। डब्ल्यूबीसी, इसका नंबर इज 6000 to 8000। इवन ये आपका 6000 से 8000 ये आपका डिफरेंट फॉर्म में होते हैं। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, एक होते हैं ग्रैनुलोसाइट्स और एक होते हैं एग्रैनुलोसाइट्स। देन ग्रैनुलोसाइट्स, ये ग्रैनुलोसाइट्स ये 3 तरह का होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, देन basophils, then eosinophils। देन न्यूट्रोफिल्स ये न्यूट्रल स्टेन लेते हैं, एंड ये सबसे स्मॉलेस्ट एंड मोर नंबर होते हैं, ये 65% होते हैं, तो मोस्ट न्यूमरस होते हैं, एंड ये स्मॉलेस्ट होते हैं, ये फैगोसाइटिक होते हैं। दीज आर फैगोसाइटिक, smallest
मोस्ट न्यूमरस, ये बहुत सारे होते हैं। मोस्ट न्यूमरस न्यूक्लिएटेड कॉर्पोसेल्स होते हैं, ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो phagocyte that are smallest and most phagocyte that are smallest and they are most numerous nucleated corpuscles, आपको आंसर करना पड़ता है उसमें, वेदर न्यूट्रोफिल, बेसोफिल्स या तो ईशनोफिल्स। देन ये न्यूट्रोफिल्स होते हैं। देन बेसोफिल्स, इसका परसेंटेज होता है 0.5 to 1%। ये 0.5 to 1%, ये आपका दे हेल्प इन योर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। मीन्स कहीं पे अगर आपका बॉडी में आघात होते हैं तो इमीडिएटली द कॉर्पोसेल्स दैट रेस्पॉन्स आर योर बासोफिल्स। देन वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं, देखें आप, कभी आपका कहीं आघात लगा तो उस जगह में रेड कलर का एक आपका धब्बा लगता है बॉडी में, देन वहाँ पे स्वेलिंग होते हैं। देन ये सभी इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स इज ड्यू टू दिस बासोफिल्स। देन यूसिनोफिल्स, ये एसिडिक होते हैं। देन इसको एसिडिक स्टेन लेते हैं तो इसको एसिडोफिल्स भी बोलते हैं। एंड इसका नंबर यूजुअली 3% तक होते। देन इसका काम होते एलर्जिक, बॉडी में एलर्जिक रेस्पॉन्स इज ड्यू टू यूसिनोफिल्स, यूसिनोफिल के वजह से एलर्जिक रेस्पॉन्स होते हैं। देन और एक चीज़ आपका एग्जाम में यूजुअली डायग्राम से आपको पूछा जाता है, तो डायग्राम में आइडेंटिफाई करने के लिए दिया रहता है। देन ये चीज़ होते हैं, ये वाला भी इम्पोर्टेंट होते हैं इन द कॉन्टेस्टेड एग्जाम। इसमें 5 लोब न्यूक्लियस होते हैं, 5 लोब न्यूक्लियस। देन बेसोफिल्स में ये 3 लोब होते हैं, यूजुअली ये पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट होते हैं। देन यूसिनोफिल्स में आपका 2 लोब न्यूक्लियस होते हैं, जॉइंड बाय ब्रिज, जॉइंड बाय इस्थमस और ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर। तो ये देखने के लिए एक आपका जैसे गांधी का चश्मे की तरह दिखता है, राइट। ये आपका डायग्राम भी आपको पोस्ट करते हैं। सो हियर the diagrammatic view of different blood corpuscles pertaining to leukocytes, ये हम देखेंगे यहाँ पे, नहीं दिखाई दे रहे। एक है ये यहाँ पे डिफरेंट कॉर्पोसेल्स में हमारा ये आरबीसी, प्लेटलेट्स, इसके बारे में हम आरबीसी के बारे में पढ़ चुके हैं। ये है आपका डब्ल्यूबीसी, यहाँ से आपका यहाँ तक ये होते ग्रैनुलोसाइट्स। देन ये दोनों होते ए ग्रैनुलोसाइट्स। देन ये ग्रैनुलोसाइट्स में ये देखिए आपका गांधी का चश्मा बोल सकते हैं या तो हेडफोन की तरह दिख रहे, ये होते हैं रेड कलर है, एसिडिक है। देन यूसिनोफिल्स, ये रेडिश इन अपीयरेंस होते हैं। एग्जाम में इसके थोड़ा कलर से आपको ये आपका डायग्राम दिया होगा, ये कौन सा कलर होते पूछते हैं। देन ये रेडिश होते मीन्स एसिडिक होते हैं, रेस्पॉन्स एसिडिक डाई लेता है। एंड ये देखिए ये ब्रीज्ड कॉर्पोसेल, अगर ब्रीज्ड कॉर्पोसेल पूछे इसमें ही ब्रीज होते, ब्रीज्ड कॉर्पोसेल, राइट। देन ये देखिए 2 न्यूक्लियर लोब होते हैं। देन बेसोफिल्स, इसमें 3 न्यूक्लियर लोब, ये आपका क्लियर नहीं है इसमें पिक्चर में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देखिए, थोड़ा देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा 3 लोब, लेकिन एग्जाम में ये आता नहीं, इसको थोड़ा आपका ज़्यादा ध्यान देना। देन ये देखिए 5 लोब, ये 5 लोब होते हैं न्यूट्रोफिल। और मोर लोब्ड न्यूक्लियस कौन सा कॉर्पोसेल में है, ये डायग्राम से पूछ सकते हैं। मोर लोब्ड न्यूक्लियस ये न्यूट्रोफिल्स में होते हैं। देन अभी चलते हैं एग्रैनुलोसाइट्स के बारे में देखेंगे। एग्रैनुलोसाइट्स
ये दो तरह का होते हैं, एक होते हैं यहाँ पे जैसे दिखाया गया है, एक होते हैं मोनोसाइट और एक होते हैं लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट को लेके आपका क्वेश्चन आते हैं बहुत बार, इसमें लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड कॉर्पोसेल, लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड कॉर्पोसेल ऑफ बॉडी। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट होते है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये देखिए सबसे बड़ा न्यूक्लियस इसमें है, एंड ये कौन सा शेप में है, ये आपका बीन शेप में है या तो किडनी शेप में है, बोल सकते हैं बीन शेप, ये क्लियरली दिखता है। एंड ये लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड कॉर्पोसेल होते हैं, राइट। ये देखिए, ये लार्जेस्ट न्यूक्लिएटेड कॉर्पोसेल जो कि बीन शेप होते हैं। देन फॉर योर इंफॉर्मेशन, ये मोनोसाइट आपका कैपिलरी से पास हो जाते हैं लिम्फ को, एंड वहाँ पे जाने से ये लार्जेस्ट मैक्रोफेज बन जाते हैं। मैक्रोफेज का फैगोसाइटिक वैल्यू ज़्यादा होते, तो लार्जेस्ट फैगोसाइट्स इन ब्लड होते हैं ये मोनोसाइट। जब पास कर देते लिम्फ को बन जाते मैक्रोफेज। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा इसको ध्यान रखना है। तो लार्जेस्ट फैगोसाइट्स ये होते हैं मैक्रोफेजेस, एंड ये लिम्फ में होते हैं, प्रेजेंट इन लिम्फ। देन जिस प्रोसेस से मोनोसाइट जाके लिम्फ में पहुंचते उस प्रोसेस को बोलते हैं डायापेडियासिस। द प्रोसेस in which monocyte squeeze out through narrow capillaries to lymph, इसको हम बोलते हैं, ये प्रोसेस को बोलेंगे डायापेडियासिस। देन डायापेडियासिस से जब आपका ये मोनोसाइट जाके पहुंचते हैं लिम्फ में, ये बन जाते हैं लार्जेस्ट फैगोसाइट। वहाँ पे ये जैसे आपका यहाँ पे जो है बच्चा अगर थोड़ा बहुत कम अच्छा पढ़ता है लेकिन पढ़ता है, तो गांव में जाने से वो हीरो बन जाता है, क्योंकि वहाँ पे उसका नॉलेज लेवल ज़्यादा होता है दूसरे से, राइट। क्योंकि दो दे हैव राइट द प्लेटफॉर्म टू रीड, लेकिन वहाँ पे ठीक तरह उनका वहाँ पे एजुकेशन लेवल में थोड़ा कमी रहता है, तो इसीलिए ये जब शहर का बच्चा वहाँ पे जाता है हीरो बन जाता है। वैसे ये वाला आपका जो मोनोसाइट होते हैं ये ब्लड में होते हैं, ये ब्लड में दूसरा फैगोसाइट्स के साथ रहता है, जैसे आपका न्यूट्रोफिल भी एक फैगोसाइट है। देन ये आपका कैपिलरी से पास करने का कैपेसिटी रखता है, तो कैपिलरी का थिन वॉल वन वॉल्ड होते हैं, वो भी देखेंगे हम। तो उससे पास होके जाके पहुँचते हैं ये लिम्फ में, तो बन जाते हैं लार्जेस्ट फैगोसाइट्स। देन अभी देखते हैं लिम्फोसाइट के बारे में। लिम्फोसाइट्स ये जब बोन मैरो में रहते हैं, तो इसको हम आपका सेकेंड ईयर में एक पर्टिकुलर सेकेंड ईयर में हम पढ़ते हैं एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट जो बायोटेक में उस जीन थेरेपी में, उसको लेके यहाँ पे पूछ सकते हैं, राइट। तो आपका ये क्योंकि इन रिलेशन विथ अदर चैप्टर क्वेश्चन आता है, तो यहाँ पे एक आडा एंजाइम करके आता है, तो आडा जीन से बनते हैं आडा एंजाइम। आडा का मतलब है एडेनोसिन डी अमीनेज, राइट। जीन होते वो बनाते हैं एडेनोसिन डी अमीनेज एंजाइम, वो स्टिमुलेट करते हैं बोन मैरो को, तब जाके आपका बोन मैरो से ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स ये बनते हैं, राइट। ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनते हैं फ्रॉम बी लिम्फोसाइट, या तो
आपका ये हम देखेंगे अभी वो प्रोसेस को। लिम्फोसाइट्स ये दो तरह का होते हैं, टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। तो ये टी लिम्फोसाइट बी लिम्फोसाइट्स ये बोन मैरो से बनते हैं, ये बोन मैरो से बनते हैं, फ्रॉम बोन मैरो। जब इस बोन मैरो को आडा एंजाइम और एडेनोसिन डी एंजाइम लिखते हैं, एडेनोसिन डी अमीनेज एंजाइम, एडेनोसिन डी अमीनेज एंजाइम जब स्टिमुलेट करता है, ये बोन मैरो से बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दोनों बनते हैं। लेकिन टी लिम्फोसाइट ये आपका मैच्योर होते जाके थाइमस ग्लैंड में एंड बी लिम्फोसाइट मैच्योर होते बोन मैरो में। तो ये आपका लिम्फोसाइट्स दे हेल्प इन डिफेंस इन लिम्फ। तो लिम्फ में ये डिफेंस के लिए काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ये बॉडी का आपका टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट्स आपका डिफरेंट डिजीज से आपको प्रोटेक्ट करते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट ईयर में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में डिटेल देखेंगे। एंड बायोटेक में ये एडेनोसिन डी अमीनेज एंजाइम कैसे इसका ऊपर इम्पैक्ट करता है उसका बारे में देखेंगे, राइट। देन नाउ विल हैव ए लुक इनटू द अदर एस्पेक्ट्स ऑफ ब्लड। तो ब्लड में हम अभी तक देखे कर्पोसेल्स प्लाज्मा के बारे में। इसके अलावा वी आर हैविंग डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स आल्सो। ये ब्लड ग्रुप्स क्या होता है उसके बारे में देखेंगे। ब्लड ग्रुप, द ब्लड ग्रुप्स आर प्रेजेंट as antigens on erythrocytes। तो ये जो एंटीजन बनता है, एंटीजेंस ये यूजुअली फॉरेन बॉडी होते हैं। तो यहाँ पे जो एंटीजेंस है ये नेचुरल एंटीजन बॉडी में होते हैं, राइट। ये एंटीजन दो चीज़ से बनते हैं, आइदर कार्बोहाइड्रेट या तो प्रोटीन से बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा कार्बोहाइड्रेट या तो शुगर से बनने वाला नेचुरल एंटीजन हमारा इस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप्स बनाते हैं। तो नेचुरल एंटीजेंस जो ब्लड ग्रुप बनाते हैं ये आपका जैसे ए टाइप ऑफ शुगर, then B it is also another type of sugar, then आपका RH ये होते प्रोटीन। RH ब्लड ग्रुप जो है, राइट, इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन, इट इज ए टाइप ऑफ योर एंटीजन एंड इट इज डिराइव्ड फ्रॉम प्रोटीन। सो कलेक्टिवली आप बोल सकते हैं जो नेचुरल एंटीजेंस ऑफ आवर बॉडी दे आर आइदर शुगर और प्रोटीन डिराइव्ड। तो नेचुरल एंटीजेंस present in human body are either carbohydrates or proteins। तो ये एग्जाम के लिए क्वेश्चन हो सकते हैं, अच्छा क्वेश्चन। तो आप बोलोगे सर RH कैसा प्रोटीन हुआ? क्योंकि RH जो आपका फैक्टर है, RH फैक्टर, ये आप देखे हो इसमें RH एंटीबॉडी बनाता है,
it forms RH antibody. RH antibody, जहाँ पे एंटीबॉडी होते हैं, इसका मतलब क्या है? एंटीबॉडी होते हैं दे आर ग्लाइकोप्रोटीन्स. आप दिस एस्पेक्ट में ग्लाइकोप्रोटीन जो है आप पढ़ सकते हैं इन केस ऑफ आपका 12th लेसन में आपका इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो है वहाँ पे हम पढ़ सकते हैं इसके बारे में. तो ये RH एक तरह का एंटीबॉडी है. RH जो ब्लड ग्रुप ये बनाते हैं RH एंटीबॉडी. तो इससे हमें पता चलता है इट इज ए टाइप ऑफ प्रोटीन. एंटीबॉडीज आर प्रोटीन्स. सो यहाँ पे नेचुरल एंटीजेंस हमारा बॉडी में जो है इधर कार्बोहाइड्रेट हो सकते हैं या तो प्रोटीन्स हो सकते हैं. देन we are having other blood groups also, जैसे O blood group. इसमें नो sugars are present. उसमें कोई शुगर नहीं रहता, बट ये आपका एंटीबॉडीज बनाता है. तो ये O ब्लड ग्रुप नो शुगर्स आर प्रेजेंट. देन कभी कभी दोनों मिलके ब्लड ग्रुप एक ही जगह में रहते हैं, इसको बोलते हैं AB ब्लड ग्रुप. इसमें बोथ एंटीजेंस आर प्रेजेंट और मोर एंटीजेंस आर प्रेजेंट इन व्हिच ब्लड ग्रुप, ये क्वेश्चन हो सकता है. मोस्ट एंटीजेंस इस ब्लड ग्रुप में होते हैं. देन आपका प्लाज्मा में ये क्या बनाते हैं उसके बारे में हम थोड़ा देखेंगे. ये डायग्रामेटिकली आपका पिक्चरिस्टिक व्यू देखेंगे. Now this is the picture of the different blood groups and their antigen and antibodies present in them, right, are formed by them. This is blood group A. As I had told you, this is the particular sugar present on RBC. तो एक तरह का शुगर होते हैं जो कि RBC में होते हैं. B ब्लड ग्रुप ऐसे B एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर देन A that is also present on the RBC. then AB बोथ शुगर्स जब होते हैं RBC के ऊपर तो AB ब्लड ग्रुप बनते हैं. देन O में कोई भी शुगर नहीं रहता एंड इट इज द ब्लड ग्रुप डू नॉट हैविंग एनी एंटीजन. देन ये जब एंटीजन रहता है तो उसका अगेंस्ट में बॉडी प्लाज्मा में एंटीबॉडीज बनाते हैं. तो एंटीबॉडीज जैसे A ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी होता है एंटीबॉडी B. देन B ब्लड ग्रुप का एंटीबॉडी होते हैं एंटीबॉडी A. देन AB ब्लड ग्रुप दोनों आपका एंटीजन लेने से उसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है. देन जिसमें कोई भी एंटीजन नहीं रहता बहुत सारे एंटीबॉडी बनते हैं, जैसे A B दो तरह का एंटीबॉडी बनते हैं. देन इस ब्लड ग्रुप का यूजुअली रेजिस्टेंट ब्लड ग्रुप बोलेंगे क्योंकि दो एंटीबॉडी जिस ब्लड ग्रुप में होते हैं ये रेजिस्टेंट ब्लड ग्रुप होते हैं. देन इन कंटेक्स्ट ऑफ अगर यहाँ पे RH जो ब्लड ग्रुप है अगर वो लगा दिया जाए तो RH जिसमें है तो वो RH मिला के हम बोल सकते हैं AB एंड RH मीन्स AB पॉजिटिव. AB RH क्या होता है? AB पॉजिटिव. तो AB पॉजिटिव ये मोस्ट रेजिस्टेंट ब्लड ग्रुप होगा. देन जो लीस्ट रेजिस्टेंट होते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी एंटीबॉडी नहीं है. अगर RH भी नहीं होगा तो RH अगर नहीं होगा वो ब्लड ग्रुप, ये देखिए AB ब्लड ग्रुप में अगर RH नहीं होता तो RH नेगेटिव, तो उस पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप तो ये होगा आपका कौन सा मोस्ट यूनिवर्सल रेसिपिएंट.
देन यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा, जिसमें आपका कोई भी एंटीजन नहीं है एंड आरएच भी नहीं है, तो होगा यूनिवर्सल डोनर। तो ओ नेगेटिव ये होते हैं यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप। तो यूनिवर्सल डोनर हो गया ये। देन यूनिवर्सल रेसिपिएंट हो गए ए बी नेगेटिव ओ नेगेटिव हो गया ये वाला। देन रेजिस्टेंट होते हैं आपका ओ ब्लड ग्रुप वाले। अगर ओ यहाँ पे ओ एंड आर एच नेगेटिव हो, सॉरी आर एच पॉजिटिव हो, देन इट इज रेजिस्टेंट ब्लड ग्रुप। तो ओ पॉजिटिव इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ब्लड ग्रुप। देन ओ नेगेटिव होता है यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं ए बी नेगेटिव यूनिवर्सल रेसिपिएंट। देन we will have a look into the erythroblastosis fetalis, a disease caused due to problem in or mismatch in Rh antigen. So Rh incompatibility, when mother is Rh negative, then a problem of incompatibility होते हैं। इनकम्पैटिबिलिटी बनता है कैसे, ड्यू टू child is always Rh पॉजिटिव। ये Rh पॉजिटिव और डोमिनेंट रहना, Rh पॉजिटिव मीन्स डोमिनेंट रहना, ये होते हैं मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं। मेंडल में हमेशा फर्स्ट फिलियल जनरेशन डोमिनेंट रहता है, तो यहाँ पे ऐसे ही आपका Rh पॉजिटिव ये होते हैं आपका मेंडेलियन इनहेरिटेंस से बनते हैं। तो इसके वजह से आपका क्या होता है, Rh पॉजिटिव ब्लड ग्रुप जो है इट फॉर्म्स Rh पॉजिटिव एंटीबॉडी बाय मदर। तो ये कब बनता है, जब आपका पार्चुरेशन होता है फर्स्ट चाइल्ड, देन ये आपका बेबी का ब्लड एक्सपोज होते हैं मदर का यूट्राइन ब्लड से, देन तब ये पर्टिकुलर Rh पॉजिटिव एंटीबॉडी मदर बनाता है। देन फर्स्ट चाइल्ड एस्केप्स द प्रॉब्लम, देन जब सेकेंड चाइल्ड बनता है देन दैट कॉजेस द डिजीज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस और डेथ ऑफ चाइल्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। तो ये डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन क्यों हुआ, बिकॉज आरबीसी मर जाते हैं बच्चे का बिकॉज ऑफ दिस एंटीबॉडी फॉर्म बाय मदर। तो इस पर्टिकुलर डिजीज को बोलते हैं आपका सेकेंड चाइल्ड फेसेस द प्रॉब्लम ऑफ erythroblastosis
फीटालिस एंड इसका मतलब होता है एरिथ्रो मीन्स आरबीसी, ब्लास्टोसिस्ट मीन्स डिस्ट्रॉयड, फीटालिस मीन्स चाइल्ड। तो चाइल्ड में डिस्ट्रॉय होते हैं, इसको भी बोलते हैं HDN प्लस। उसका मतलब, ये प्लस का मतलब when babies RH positive, then HDN means hemolytic disease of neonates। इसका मतलब है हेमो मीन्स आरबीसी और हेमोग्लोबिन जिसमें होते हैं, आरबीसी में हेमोग्लोबिन होते हैं, तो इसलिए हेमोलाइटिक मीन्स डिस्ट्रॉयड, नियोनेट्स मीन्स चाइल्ड। तो ये डिजीज आपका सेकेंड चाइल्ड का बात में जब RH नेगेटिव मदर होते हैं तब ये प्रॉब्लम होते हैं। इसको अवॉइड करने के लिए एक इंजेक्शन दिया जाता है। इंजेक्शन का नाम एनसीईआरटी में ये इसका बारे में जिक्र नहीं किया, वो स्टिल विल हैव दैट, वो एग्जाम में आता रहता है। रोगम ये इंजेक्शन होते हैं, इसमें एंटी RH antibody is administered to pregnant mother। जब प्रेगनेंटी डिस्कवर करते हैं तब ये दिया जाता है। तो ये आपका RH एंटीबॉडी जो मदर बनाते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। डिस्ट्रॉय करने से द फीटस कैन बी सेव्ड। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल, जिससे आपका ब्लड एंड लिम्फ होते हैं। तो इससे पहले और एक चीज छूट गया, वो होते हैं लिम्फ होते हैं इंटरमीडिएट बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। तो ये ब्लड एंड टिश्यू के बीच में इंटरमीडिएट बनता है। देन ए लिम्फ, उसमें लिम्फ कंटेन्स all the things of all the things of blood except RBC and प्रोटीन्स। तो इसमें प्रोटीन्स नहीं रहता, RBC नहीं रहता, तो बाकी सब होते हैं इसमें, जैसे ल्यूकोसाइट्स होते, फैट्स होते, फ्यू अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन इसमें RBC एंड प्रोटीन्स नहीं पाए जाते। Then we'll have a look into disorders। एक मिनट, we'll have a look into your blood vessels, then the disorders। Now we'll have a look into the different types of blood vessels and its anatomical structures। तो ब्लड वेसल्स जो है, जो कि आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइड को सर्कुलेट करने में हेल्प करते हैं, ये 3 तरह का होते हैं, आइदर आर्टरीज, वेन्स या तो योर कैपिलरीज। कैपिलरीज होते हैं स्मॉलेस्ट वेसल ऑफ 1 cell thick। तो ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते। देन आर्टरीज
इसमें आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं, तो इसमें ट्यूनिका और सर्कुलरली कवर्ड एक्सटर्ना होते, जो देन ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। इसमें भी वही सेम ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना होते। देन इन कैपिलरीज, एक मिनट, वेन्स में ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटरना होते हैं। देन अबाउट कैपिलरीज, कैपिलरीज में हम देखें तो ओनली ट्यूनिका इंटरना होते हैं। देन इंटरनल एस्पेक्ट में ये ट्यूनिका मीडिया ये स्मूथ मसल से बनते हैं, ये थिक होते एंड इसके वजह से ल्यूमेन नैरो होते। ये ट्यूनिका मीडिया इन केस ऑफ वेन्स ये आपका थिन होते, ट्यूनिका मीडिया थिन एंड ल्यूमेन वाइड होते। तो आपका स्पेशली कैपिलरीज ये आपका उसके बारे में आते, या तो ट्यूनिका स्मूथ मसल्स आर मच थिकर, इसके बारे में आपका एग्जाम में पूछाते। तो स्मूथ मसल्स जो कि थिक होते ये आपका आर्टरीज में होते, या तो सिंगल सेल थिक वाले कौन सा वेसल होते कैपिलरीज। देन we'll see about disorders in बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर में डिजॉर्डर्स जो है, डिजॉर्डर्स इन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो इसको लेके डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजॉर्डर है, लेकिन कुछ डिजॉर्डर्स जो एनसीईआरटी में दिया गया उसका बारे में हम देखेंगे। तो एक होता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन कब होते हैं? जब आपका ये थिकनेस ऑफ इंटरनल ल्यूमेन ऑफ कैपिलरी बढ़ जाते हैं, तो उसमें ब्लड पैसेज हो नहीं पाता है, तो उसके वजह से हाइपरटेंशन होने से डिफरेंट रीजन हो सकता है। जैसे और भी रीजन है, जैसे सोडियम आपका बढ़ जाना ब्लड में, तो सोडियम बढ़ जाने से भी आपका हाइपरटेंशन होते, या तो आपका थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन बढ़ जाना हार्मोन, उसमें भी होते हैं। लेकिन द मेन कॉज इसमें नहीं दिया गया है, तो हम उसके बारे में नहीं देखेंगे। तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होता है वो दे रहा है। तो इसमें हाइपरटेंशन में यूजुअली 140 होते हैं सिस्टोल एंड डायस्टोल होते हैं। ये होते हैं 90 होते हैं डायस्टोल, डायस्टोलिक प्रेशर, और ये सिस्टोलिक प्रेशर। देन नॉर्मल से ये कितना डिफरेंट होते हैं आपको पूछा जा सकता है। नॉर्मल आपको नॉर्मल ब्लड प्रेशर और नॉर्मल रेंज आपका सिस्टोल का 120 होता है, डायस्टोल का 80 होते हैं। 120 आपका ये प्रेशर, ये सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं, एंड ये 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। देन नेक्स्ट होते हैं लो ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर ऐसे इससे कम रहना। देन 110/70
mm of Hg। ये प्रेशर आपका एक इक्विपमेंट में मेजर किया जाता है। आप जानते हो डॉक्टर के पास जब गए हो तो ऐसे एक डिवाइस हाथ में लगा के आपको वो प्रेशर मेजर करते हैं बैरोमीटर में, तो उस इक्विपमेंट को बोलते हैं स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर में आपका ये ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, राइट। सो ये ब्लड प्रेशर हमेशा मिलीमीटर ऑफ Hg से मेजर किया जाता है। देन वी आर हैविंग कॉमन आर्टेरियल डिजीज, कैट और कॉमन आर्टेरियल डिजीज। तो आर्टरीज में ये दो तरह का कॉमन आर्टेरियल डिजीज होते हैं। एक होते हैं आपका जैसे उसमें फैट डिपॉजिट होना और बैड कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होना, इस पर्टिकुलर डिजीज को हमारा बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। ये कैसे होते हैं? डिपोजिशन ऑफ बैड कोलेस्ट्रॉल और ये आपका फैट बोल सकते हैं। तो एथेरो इन ग्रीक मीन्स फैट। ये डिपोजिशन होने से स्टिफनिंग हो जाती है। स्क्लेरोसिस मीन्स स्टिफनिंग, स्टिफनिंग हो जाता है आपका आर्टरीज का, राइट। ये फैट डिपोजिशन होने से उसके अंदर से ब्लड पास कर नहीं पाता, उसके वजह से जो प्रेशर होता है इस पर्टिकुलर चीज़ को हम ऑलरेडी देख चुके हैं, हाई ब्लड प्रेशर होते हैं, राइट। देन इससे डैमेज होते हैं इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स जैसे किडनी, हार्ट, ब्रेन, ये सब डैमेज होने का चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन नेक्स्ट होते हैं आपका कैल्शियम डिपोजिशन से जो डिजीज होते हैं इसको बोलते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। लेकिन ये एथेरोस्क्लेरोसिस के बारे में हमारा ज़रूरत नहीं, वो यहाँ पे ही दे दिया क्योंकि आपका एनसीईआरटी में इट इज़ मेंशन्ड इन वन प्लेस, दैट इज इन योर एथेरोस्क्लेरोसिस में, राइट। तो ये एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन ब्लड वेसल। तो ब्लड वेसल में आप जानते हो ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल होते हैं, तो ब्लड वेसल का स्मूथ मसल में अगर कैल्शियम डिपोजिट होता है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं कर पाते, इसके वजह से लो प्रेशर होते, लो ब्लड प्रेशर होते, लीड्स टू डेथ। देन ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमन आर्टेरियल डिजीज। नाउ हम देखेंगे आपका एक डिजीज जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड कार्डियक सिस्टम का कनेक्टिंग लिंक है, इसको बोलते हैं हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर a disease connecting respiratory system and circulatory system। तो कैसे कनेक्ट होते हैं उसके बारे में थोड़ा दे हम have a few glimpse on that। When oxygenated blood not supplied by lungs to heart, then heart beats to the maximum for supplying blood to tissue, and at last
cardiac arrest means stoppage of heart. At last, stoppage of heart or cardiac arrest occurs. ECG के लेके यहाँ पे क्वेश्चन आता है, राइट. When cardiac arrest occurs, the sound produced in ECG is P करके एक साउंड होता है, लॉन्ग साउंड that can be, right, taken from this question in context to ECG. Then last disease is angina. Angina in Greek means pain, pain on chest. ये क्यों होता है? ड्यू टू नॉन सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू चेस्ट मसल्स. ड्यू टू, क्यों सप्लाई नहीं होता? ड्यू टू ब्लॉकेज ऑफ कोरोनरी आर्टरी. मीन्स ये आर्टरी क्या होता है? जो आपका हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई करते हैं, इसको बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी. एंड इसका ब्लॉकेज से आपका ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होता हार्ट मसल को. इसके वजह से आपका हार्ट पेन करता है, आपका चेस्ट रीजन में पेन होते हैं. इसको बोलते हैं एंजिना पेक्टोरिस. एंड दिस कंक्लूड्स द ब्रीफ रिविजन ऑन body fluids and circulation. Friends, I hope so friends, this concludes the brief revision on blood vessels, body fluids and circulation, and I hope that this will be much more helpful in your NEET exam, because some of the internal facts are revealed and that were also presented for your benefits. And now I hope that you will be in touch for viewing further videos and subscribe this particular topic for your benefits channel for further associate with me for new videos in future